بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس کے ناول میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں آپ کی دوست اس کے۔ آج پہلی بار میں اپنا کچھ شروع کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ناول سے شروع کیا جائے، کیونکہ میری طرح بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ناول پڑھنے کا شوق ہے۔ میں پہلی بار اسٹارٹ کر رہی ہوں، پلیز دوستو میرا ساتھ دیجیے گا۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ جنت کے پتے، نمرہ احمد، ایپیسوڈ 1، قسط نمبر 1۔ لیپ ٹاپ سامنے تکیے پہ رکھا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی سے لیپ ٹاپ کے ٹچ بٹن پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال سائڈ پر پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اور چاندنی جیسی چمک تھی، اور چہرہ ملائی کا بنا لگتا تھا، سفید، صاف اور چکنا سا۔ وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نظر مرکوز کیے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد کوئی صفحہ کھلا تو اس کی متحرک انگلی رک گئی۔ اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ۔ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کے انتظار کرتے ہوئے اسی مستعد انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کی دائیں طرف سے پھسلتی لٹیں پیچھے کی۔ چند سیکنڈ میں صفحہ لوڈ ہو گیا۔ وہ بے چین ہو کر چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو اس کے بالوں کی چند لٹیں پھسل کر پھر چہرے کے سامنے آ گئی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اس کو خود کو یقین دلانے میں کہ جو وہ پڑھ رہی تھی بالکل سچ تھے، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا فون سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی کوئی نمبر ڈائل کیا۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا ارتعاش پیدا کیا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہیلو سارا، شاید رابطہ مل گیا تھا۔ تبھی وہ بے حد شوقی سے چہکی، کیسی ہو؟ کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی اور پھر ہنس پڑی۔ ساری باتیں چھوڑو، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو، اس نے عادتاً اپنے بالوں کی لٹوں کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں یار، دلاور بھائی کی شادی کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسری طرف زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی۔ بلکہ تم ایسا کرو، گیس کرو میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ سائڈ پر کیا اور تکیہ نکال کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر کہا۔ پھر اس نے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے، ساتھ ساتھ وہ زارا کے اندازوں کی تردید بھی کیے جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں۔ ارے میری شادی بھی نہیں ہو رہی، جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے؟ اب کان کھول کر سنو تم، وہ آرمڈ یوز ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا، یورپین یونین نے مجھے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر بند ہونے کے باوجود بھی اس کی چیخ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی میل ملی ہے۔ اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف موڑ کر دوبارہ غور سے اسکرین کو دیکھا، جہاں 15 منٹ پہلے ہی کی سلیکشن میل آئی ہے۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ آف کر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اندھیرا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسکرین کو بند کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں نے سبانجی کو نیٹ پر دیکھا ہے، بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر وہ تھوڑی دیر کو خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف سے اختصار پر تو پھر سے بولی، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے،
हम अपनी फैमिलीज़ को इसके बारे में नहीं बताएंगे। वो धीमी आवाज़ में बोलते हुए उसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल सबांजी में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है। उधर सर ढाँपना मना है। घर वालों को बताकर मुतफक्कर करने की बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों ही स्कार्फ नहीं लेती। उस पल खिड़की के बाहर कुछ खटका हुआ। वो चौंक कर देखने लगी। कद आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे हुए थे। अलबत्ता पीछे जालियां खुली हुई थी। शायद शायद उसका वहम था। वो सर झटक कर फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गई। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने के लिए या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया। थैंक गॉड। हाँ, इरम के घर बाहर स्कार्फ लेती है। हाँ, इरम घर के बाहर स्कार्फ लेती है। उसके अब्बू ताया फुरकान कुछ सख्त है ना। फिर वो बेड से टेक लगाते हुए नीम दराज होकर बताने लगी। परमिशन का तो कोई मसला नहीं है। अब्बा स्पेन जाने की इजाज़त ना देते, मगर तुर्की में सबीन फूफू रहती हैं तो वो मान गए थे। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो उसने फिर नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं दिलावर कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी कल है। तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कजिन्स बहुत एक्साइटेड हैं। खानदान की पहली शादी है ना। ओके, अब तुम जाकर मेल चेक करो। मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमात बोलने के बाद उसने फ़ोन तकिए पर उछाल दिया। फिर बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा हुआ था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। नंगे पाँव चलते लाउंज से किचन में आई। स्याह कमीज़ और खुले ट्राउज़र में उसका कद और भी दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला हुआ था। वो दरवाजे पर रुकी और हाथ बढ़ाकर किचन की लाइट जलाई। सारी बत्तियां जल गई। उसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से बाल फिसलकर सामने आ गए। हया ने नरमी से उनको पीछे हटाया और पानी की बोतल लेकर सीधी हुई। काउंटर पर रखे रैक से गिलास उठाया और पानी गिलास में उंडेलने लगी। तभी उसकी निगाह काउंटर पर रखी सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी। बोतल वहीं रख आगे आई। वो सफ़ेद अधखुले गुलाबों का बुके था। वो एक सफ़ेद लिफाफा भी था। हया ने गुलदस्ता उठाया और धीरे से पास लाकर आंखें मूंदे उसको सूंघा। दिलफरेब ताजगी भरी महक उसमें तर गई। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी तोड़े हों। जाने कौन यहाँ रख गया। उसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। उसके पत्ते वाली जगह पर हया सलमान लिखा हुआ था। भेजने वाले का कोई पता नहीं था, बस कुरियर की टिकट लगी हुई थी और टिकट पर एक रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई थी। उसको तो कभी किसी ने ये फूल नहीं भेजे। ये क्या मामला था? उलझते हुए हया ने लिफाफा चेक किया। उसमें एक मोटा कागज़ था। उसने 2 उंगलियां डालकर कागज़ बाहर निकाला। सफ़ेद कागज़ बिल्कुल साफ था। ना कोई लकीर, ना डिज़ाइन। बस एक वस्त में 2 लफ्ज़ लिखे हुए थे, वेलकम टू सबांची। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था? भला खत भेजने वाले को क्या मालूम कि मैं सबांजी जा रही हूँ? खत पर तो एक रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई थी, जबकि कबूलियत की मेल तो अभी 15 मिनट पहले मिली। तो फूल भेजने वाले को एक दिन पहले कैसे पता चल गया? अगर ज़ारा को उसने खुद ना बताया होता तो वो यही समझती कि ये उसकी हरकत है। ये खत सबांजी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि उस पर लोकल कुरियर की मेहर लगी हुई थी। फिर किसने भेजा है ये? वो पानी का गिलास वहीं स्लेब पर रखकर भुके उठाकर सोचती हुई अपने कमरे में चली गई। सॉरी। उसने लॉक में चाबी घुमाई ही थी कि गेट के पार से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई मेल नहीं मिली। ज़ारा ने अधखुले गेट को ढकेलकर अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पर उदासी थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगा, फिक्र मत करो। हमने एक साथ ही अप्लाई किया था। मुझे आ गई है तो तुम्हें भी आ जाएगी। मगर स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर जो लिस्ट थी उसमें भी मेरा नाम नहीं है, और मेरा सिर्फ तुम्हारा है, हमारे डिपार्टमेंट में से, और एनवायरमेंटल साइंसेज की एक लड़की खदीजा का है। मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओ, उसे वाकई अफसोस हुआ था। उसकी ज़ारा से
उसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पर बशाशत लाते हुए बोली। हाँ, मार्केट इरम के साथ। कल दावर भाई की मेहंदी का फंक्शन है ना, और लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई है। शायद काम वाली उठाकर ले गई है। अब नए जूते खरीदने पड़ेंगे। तुम चलोगी साथ? उसने गाड़ी पर कोहनी टिकाते हुए कहा। वो हल्की आसमानी लंबी कमीज और तंग चोरीदार पैजामे में मलबूस थी। कमीज का दामन टखनों से ज़रा ऊपर था, हम रंग दुपट्टा गले में था और बाल कमर पर खुले थे। हाँ चलो, जल्दी चलते हैं। ज़ारा फौरन तैयार हो गई और फर्श निच पर बैठ गई। इरम को भी लेना है, हया ने बैठकर कहा। वैसे तुम्हारे सख्त से ताया इरम को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं। इरम उनसे जूनियर थी और उसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था, सो ज़ारा से उसकी ज़्यादा मुलाकात नहीं थी। उनकी सख्ती सिर्फ स्कार्फ तक है, ऐसे वैसे नहीं है वो कार बाहर गेट पर ले आई। इरम का घर ज़ारा के हमसाये में था। दोनों घरों के दरमियान की दीवार में आने जाने का रास्ता था, लेकिन उसे जब भी इरम को पिक करना होता तो वो उसके गेट पर हॉर्न किया करती। अब भी ज़ोर से हॉर्न दिया तो चंद लम्हों में इरम बाहर आ गई। कासनी लंबी कमीज, ट्राउज़र और हम रंग दुपट्टे सीने पर फैलाए हुए, चेहरे पर कासनी स्कार्फ लपेटे, वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे पर आई। हेलो हया, हेलो ज़ारा, वो चहकती हुई कहकर बैठी और दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम पर वो यूं ही खुश हुआ करती थी। कैसी हो इरम? तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती। उसने रुख मोड़कर इरम को देखा। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है तभी। और हाँ, हया बता रही थी कि आप लोगों का तुर्की में सिलेक्शन हो गया है। मैं सेलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर, इसी में कोई बेहतरी होगी। तुमने अप्लाई नहीं किया था? अब्बा इजाज़त देते तब ना, उसने उदास होकर कहा। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने तादीबी नज़रों से ज़ारा को देखा कि पहले एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मज़ीद उदास न हो जाए। अब्बा भी पता नहीं इतने सख्त क्यों हैं। गर्मी में स्कार्फ लेना इतना आसान तो नहीं है। और फिर कल मेहंदी के लहंगे की भी आधी आस्तीनें नहीं रखने दी। हया की भी तो आधी आस्तीनें हैं, मगर अब्बा ज़रा भी सलमान चचा जैसे नहीं हैं। इरम, तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं। उसने कोफ्त छुपाते हुए बात को बदला। इरम हर वक्त यही रोना रोती रहती थी। चूड़ियाँ लेनी है, मगर पूरी आस्तीन के ब्लाउज के साथ चूड़ियाँ अच्छी कहाँ लगेंगी? वो मुंह बसूरे फिर से शुरू होने लगी तो हया ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गाना पूरी आवाज़ में गूंजने लगा तो इरम को चुप होना पड़ा। मार्केट पहुंचने के बाद इरम तो चूड़ियाँ ढूंढने निकल गई और वो दोनों मेट्रो आ गई। ये गोल्डन वाला जो तीसरे नंबर पर रखा है, वो दिखाएं। बहुत देर बाद एक ऊंची हील उसकी नज़र में जची थी। ये वाला मैम। सेल्समैन ने जूता निकालकर उसके सामने किया। वो ज़मीन पर पंजों के बल बैठा था और वो दोनों कांच पर बैठी थी। पहना दूं मैम? बहुत मुअद्दब और शाइस्ता लहजे में सेल्समैन ने मुस्कुराकर पूछा। मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी सर, ये लीजिए। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए जूता उसकी तरफ बढ़ाया। उसने यूं पकड़ रखा था कि पकड़ते वक्त हया की उंगलियां लाजमी उसके हाथ से मिस होती। सामने रख दो, मैं उठा लूँगी। उसके रूखे अंदाज पर सेल्समैन ने गुनगुनाते हुए जूता सामने रख दिया। फिर बिल की अदाई के बाद काउंटर पर खड़े लड़के ने बकिया रकम उसकी तरफ बढ़ाई तो हया ने देखा कि पैसों के ऊपर 5 का सिक्का रखा हुआ था और लड़के ने सिक्के को यूं पकड़ा था जैसे सेल्समैन ने जूता। शुक्रिया। हया ने नोटों को किनारे से पकड़ के खींचा तो सिक्का लड़के के हाथ में ही रह गया। मैम, आपका सिक्का? लड़के ने फातिहाना मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो लाजमी पकड़ेगी, और ये सामने पड़े सदके बॉक्स में डाल दो। वो बेनियाजी से शॉपर थामे पलटी तो ज़ारा ने बेइख्तियार कहका लगाया। उस लड़के की शक्ल देखने वाली थी हया। दिल कर रहा था उसकी शक्ल पर शॉपर में पड़े सारे जूते मार दूँ। पता नहीं हमारी जहनीत के कब बदलेगी। यूँ घूरते हैं जैसे पहली बार कोई लड़की देखी हो। वो तनफ्फुर से नाक सुकड़ती गुस्से से सीढ़ियाँ उतर रही थी जब करीब ही से आवाज़ आई, तो इतना बन-सवर के बाहर मत निकला करो बीबी। वो चौंक कर आखिरी सीढ़ी पर रुक गई। एक मुमर खातून बड़ी सी चादर लपेटी हुई नागवार भरी निगाह उस पर डालकर ऊपर जीने चढ़ गई। एक तो लोगों को राह चलते तबलीग का शौक होता है। ज़ारा उसको कोहनी से थामे हुए वहाँ से ले आई।
तभी इरम सामने से आती दिखाई दी। उसका सीने पर फैला दुपट्टा अब सिमट कर गले में जा चुका था। उसने कोई खास शॉपिंग नहीं की थी। शायद वो उसके साथ सिर्फ आउटिंग के लिए ही आई थी। मेट्रो से वो स्कोप चली आई ताकि कुछ खा पी ले। रात की दावत तो ताया फुरकान की तरफ थी, जो वो बेटी की शादी के लिए आए हुए लोगों को दे रहे थे। मेरे लिए पाइनएप्पल मंगवाना, मैं ज़रा बेकरी से कुछ ले आऊँ। इरम झपट कर बाहर को लपकी। हया ने गहरी सांस लेते हुए अपनी साइड का शीशा नीचे किया। सर्द हवा का थपेड़ा अंदर आया, मगर इतनी सर्दी में शेल्स पीने का अपना ही मज़ा होता है। वो पार्किंग लॉट में मौजूद थी और ठंडी हवा ने सबको घेरा हुआ था। इरम खासी कंप्लेस्ड लगती है ना? इरम दूर हो गई तो ज़ारा उसकी तरफ मुड़ी। और तुम उसके कम्प्लेक्स को हवा दे रही हो। वो उल्टा उसी पर खपा हुई। ताया फुरकान सिर्फ स्कार्फ की सख्ती करते हैं, वो बस इस बात पर खुद गर्जी का शिकार है और तुम भी उसका साथ दे रही हो। मैंने कहा कि बेचारी नहीं है वो बेचारी। अब उसको भी यही समझाना है कि ख्वामख्वाह के खुद तरसी से निकल आए। वेटर हाथ में कार्ड पकड़े हया की तरफ आ चुका था। तुम्हें याद है ज़ारा, जब पिछले साल यूनिवर्सिटी वालों ने हमें तुर्की के ट्रिप की आस दिलाई थी और आखिर में आकर सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था? ऑर्डर करके शीशा ऊपर चढ़ाकर वो याद करने लगी। मैं तो इतनी मायूस हो गई थी, सोचा भी ना था कि कभी जा सकूंगी। उसकी आवाज़ में उस झरने की खुशी दर आई थी। ज़ारा और वो LLB के 5वें साल में थी। उनका 7वां सेमेस्टर का दरमियान था जब यूरोपीय यूनियन के स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ, जिसके तहत यूरोपीय और एशियाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का तबादला होगा। जब दरख्वास्त देने की बारी आई तो उसको तुर्की की सबांजी यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबसे आसान लगा। फिर एक हिस्पानवी यूनिवर्सिटी में भी साथ ही अप्लाई किया कि बिलाखिर सबांजी ने उसका इंतखाब कर लिया। 7वां सेमेस्टर पूरा करके उसको 5 माह के लिए तुर्की जाना था, जहां उसके मज़ामीन तो ना थे कि तुर्की का कानून पाकिस्तान के कानून से मुख्तलिफ था। 5 माह के लिए वो अपनी मर्जी से कोई भी मजमून पढ़ सकती थी, फिर वापस आकर 8वां सेमेस्टर शुरू करना था। कितना मज़ा आए हया। कोई रोमांटिक सा हैंडसम सा हमसफ़र तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा सफ़र कितना खूबसूरत हो जाए। हमसफ़र कोई नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान से हम सिर्फ 2 लड़कियां सबांजी जा रही हैं और फिर हम ठहरी वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालियां। वो खदीजा राना जो तुम्हारे साथ जा रही है, उसे कोई बात हुई? वेटर ने शीशा बजाया तो हया ने शीशा नीचे किया। नहीं, खदीजा राना को तो मैं नहीं जानती। उसने शेल्स के गिलास पकड़े, ज़ारा का उसको थमाया, इरम का डैशबोर्ड पर रखा। बेध्यानी में वो शीशा बंद करना भूल गई। उसके इल्म में ना रहा। दफतन ज़ारा का मोबाइल बजा। ज़ारा ने सिप लेते हुए फ़ोन कान से लगाया। हेलो अम्मा जी, क्या हुआ? आवाज़ ख़राब है, 1 मिनट। ज़ारा के फ़ोन पर सिग्नल ठीक नहीं आ रहे थे। वो शेल्स का गिलास हाथ में पकड़े बाहर निकल गई। सॉरी। हया अपने गिलास से छोटे छोटे सिप लेते हुए विंडो स्क्रीन से बाहर ज़ारा को देखने लगी। अब वो दूर दरख्त के पास खड़ी बात कर रही थी। हेलो माय ब्यूटी, कोई एकदम से उसके बिल्कुल करीब आकर बोला था। वो डर कर उछली। ज़रा सा जूस भी कपड़ों पर गिरा। खुली खिड़की पर एक खूबसूरत औरत झुकी हुई थी। मेकअप से भरा चेहरा, आई शेडो से चमकती आंखें, भड़कती हुई सुर्खी, बालों का जोड़ा और चमचम करते कपड़े। वो औरत नहीं थी, मगर मर्द भी नहीं था। डरो नहीं सोहनियो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, डोली कहते हैं मुझे। हटो हटो जाओ। वो घबरा गई। ख्वाजा सरा के वजूद से सस्ते परफ्यूम की खुशबू उठ रही थी। उसे कराहत सी हुई। अच्छा सोहनियो, ज़रा बात तो सुनो। उसने अपना चेहरा और झुकाया। इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, हया ने शेल्स का भरा गिलास उसके मुंह पर उलट दिया। ठंडी ठार बर्फ मुंह पर गिरी तो वो बलबला कर पीछे हुआ। उसने फुर्ती से शीशा ऊपर लिया। सुनो जी, वो मुस्कुराकर चेहरा साफ करते हुए शीशा बजाने लगा। बंद शीशे की वजह से उसकी आवाज़ कम आ रही थी। अब वो कोई गाना गुनगुना रहा था। कपकपाते हाथों से उसने इंगिशन में चाबी घुमाई और गाड़ी वहाँ से निकाल लाई। गाड़ी बेकरी के दाखिली दरवाजे के सामने रुकी और पीछे मुड़ कर देखा। दूर दरख्तों के पास डोली नामी वो ख्वाजा सरा अभी तक वहीं खड़ा था।
वो उसके पीछे नहीं आया था। अब वो गा भी नहीं रहा था, बस खामोश गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसे बेख्तियार झचरी सी आई। कहाँ रह गई हैं ये दोनों? उसने झुंझलाकर हाथ पर हाथ रख दिया, फिर गर्दन मोड़ कर देखा। वो अभी तक उसी को देख रहा था। इरम और ज़ारा को ड्रॉप करके वो अपने कमरे में आई। डिनर का वक्त होने वाला था। उसने कपड़े भी डिनर की मुनासिबत से पहने थे, मगर जूस झलकने की वजह से ज़रा दाग पड़ गया था। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा धोकर इस्त्री किया। उसे रह रहकर वो ख्वाजा सरा याद आ रहा था। उस बिरादरी के लोग अक्सर आकर पैसे मांगते थे, मगर ऐसी हरकत तो कभी किसी ने नहीं की। उस ख्वाजा सरा की निगाहें और अंदाज उसको फिर से झुरझुरी आ गई। फिर जब वो अपनी तैयारी से मुतमईन होकर बाहर आई तो दरवाजे के बाहर पाँव किसी चीज़ से टकराया। वो चौंक गई। दरवाजे के साथ फर्श पर वो सफ़ेद अध खुले गुलाबों का बुके पड़ा था, साथ में एक बंद लिफाफा भी था। वो दोनों चीज़ें उठाकर सीधी हुई। लिफाफा खोला, जिस पर हया सलमान लिखा हुआ था। अंदर वही सफ़ेद बेसतर चौकोर कागज़ था। उसके वसत में उर्दू में लिखा था, उम्मीद करता हूँ आपका आज का डिनर अच्छा गुजरेगा। उसने लिफाफा पलट कर देखा। उस पर और कुछ नहीं लिखा था, बस लिफाफे पर गुज़िश्ता रोज़ की मोहर लगी थी। ये कौन था और क्यों उसे फूल भेज रहा था? वो खत और बुके कमरे में रखकर नए सिरे से मामले से उलझती बाहर आई। ताया फुरकान के घर खूब चहल पहल थी। सब कजिन्स लाउंज में बैठे थे। एक तरफ ख्वातीन खुशगप्पियों में मसरूफ़ थी। मर्द हजरात यकीनन ड्राइंग रूम में थे। उसके ख़ानदान में कजिन्स की बेतकल्लुफ़ी को बुरी नज़र से नहीं देखा जाता था। ताया फुरकान तमाम बहन भाइयों में बहुत सख्त थे, और उनकी सख्ती सिर्फ इरम के स्कार्फ लेने और घर से बाहर लड़कों से बात करने तक थी। इरम और बाकी कजिन्स भी घर के कजिन्स के अलावा लड़कों से बात नहीं करती थी। हया और इरम तो पढ़ती भी वुमेन यूनिवर्सिटी में थी। हाँ, दूसरे चचा और खुद सुलेमान साहब अपने बच्चों की शादियाँ मिक्स गैदरिंग में करेंगे। उनका ख़ानदान ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो लोग 3 भाई और 1 बहन थे। ताया फुरकान सबसे बड़े थे। दाऊद, फरख, इरम और समी उनके बच्चे थे। फरख मेडिकल कर चुका था और आजकल पोली क्लिनिक में हाउस जॉब कर रहा था, और हया से 3 साल बड़ा था, और समी फरख से साल भर छोटा था और MBA करके जॉब कर रहा था। सबसे बड़े दाऊद की शादी हो रही थी। फुरकान साहब के बाद सलमान थे। उनकी एक ही बेटी हया और बेटा रोहेल था। रोहेल पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में होता था। फिर जाहिद चचा थे। उनकी बड़ी 2 जुड़वां बेटियां महविश और शहरिश थीं। फिर बेटा रज़ा इंजीनियर था। सबसे छोटी बेटी सना ए लेवल कर रही थी। उस वक्त रोहेल के अलावा वो जो कि अमेरिका में था, और दाऊद के जो ड्राइंग रूम में था। बाकी सब के कजिन्स लाउंज में बैठे थे। लड़कियां कारपेट पर दायरा बनाकर बैठी थी। इरम ढोलक बजा रही थी। उसका दुपट्टा सर से ढलकर कंधे पर आ गया था। अगर अभी ताया यहाँ आ जाते तो फ़ौरन दुपट्टा सर पर ले लेती। वो महविश शहरिश के साथ सर मिला रही थी, और लड़के ऊपर सोफे पर बैठे उनके फिक्रे उछाल रहे थे। हेलो एवरीवन। वो सीने पर हाथ बांधे चलती हुई उनके करीब आकर रुकी। सबकी नज़रें उस पर रुकी। सफ़ेद चेहरे के इर्द गिर्द काले बाल और काजल से लबरेज आंखें। वो थी ही इतनी हसीन कि हर उठी निगाह में सताइश उभरती। हया कैसी हो? आओ इन लड़कों को हराते हैं। बैठो ना। बहुत सी आवाज़ें उससे टकराई। उसने कंधे उचकाए और कहा, पहले मैं सायमा ताई की किचन में मदद करूंगी। उसने इरम की अम्मी का नाम लिया, जिन्होंने उसको आता देखकर फ़ौरन किचन का रुख किया था। सायमा ताई ने यकीनन उसको नहीं देखा था, वरना फ़ौरन बुलवा लेती। इरम से ज़्यादा समझदार तो बकल उनकी हया थी। सायमा ताई के पीछे जाहिद चचा की बेगम आबिदा चची भी किचन में चली गई। अब सोफे पर हया की अम्मी फातिमा बेगम अकेली बैठी थी। अम्मा मैं ज़रा ताई की मदद करवा दूँ? उनको अपनी तरफ दिखता पाकर हया ने कहा तो उन्होंने इत्मीनान से सर हिला दिया। वो मुतमईन सी आगे बढ़ गई। वो राहदारी से गुजरकर किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी सायमा ताई की तेज़ आवाज़ उसकी समाअत से टकराई। जैसे मैं जानती नहीं ना, ये सारे रंग ढंग किस लिए हैं? एक मेरे ही बेटे मिली हैं उसको पागल बनाने के लिए। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे होकर दीवार से जा लगी। ये सायमा ताई किसकी बात कर रही हैं?
तभी मैं कहूँ भाभी, ये रज़ा क्यों हर वक्त हया हया करता रहता है। ये आबिदा चच्ची थी, उसके बारे में कह रही थी। पिछली दफ़ा जब हम सलमान भाई की तरफ खाने पर गए तो किस तरह निकसिक से तैयार फिर रही थी। तब से रज़ा मेरे पीछे पड़ा है कि हया का रिश्ता मांगे। उस लड़की को लड़कों का दिल जीतने का फ़न आता है। कितनी मुश्किल से दाऊद के दिल से उस हया का ख्याल निकाला था मैंने उसका ख्याल निकाला था मैंने, और फुरकान ने तो वो आड़ ही और सॉरी उस लड़की को लड़कों का दिल जीतने का फ़न आता था। कितनी मुश्किल से दाऊद के दिल से उसका ख्याल निकाला था मैंने, और फुरकान ने वो तो अड़ ही गया था कि शादी करूँगा तो हया से। मगर जब फुरकान ने सख्ती की कि ऐसी बेपर्दा और आज़ाद ख्याल लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत ख़राब करनी है, तब कहीं जाकर वो माना। और अब ये फ़र्क को पता नहीं क्या हो गया था। क्या करूं इस लड़के का। अब वो फिर कील कांटों से लेस होकर आ जाएगी और उसके जाते ही फ़र्क जिद लगा कर बैठ जाएगा। अब मेरी इरम भी है, मजाल है घर से बाहर सर पर दुपट्टा लिए बगैर निकले। साइमा ताई बहुत फ़ख्र से कह रही थी, और वो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ दीवार से टेक लगाते खड़ी थी। उसे लगा कि उसने मज़ीद कुछ सुना तो उसके आसाब जवाब दे जाएंगे। बदिक्कत अपने वजूद को संभालते वो वापस मुड़ी। किसी बात पर हंसते हुए फ़रख की निगाह उस पर पड़ी तो उसको राहदारी से आता देखकर उसकी हंसी रुक गई। वो मुस्कुराया। बहुत मुनासिब शक्ल व सूरत का था फ़रख, और टफ रूटीन की वजह से उसका रंग मज़ीद सांवला हो गया था। मगर मसला उसकी वाजिबी सूरत और हया की बेपर्दगी का नहीं था। असल बात सब जानते थे, तो फिर रज़ा और फ़रख ने ऐसा सोचा भी कैसे। वो एक सपाट निगाह फ़रख पर डालकर सोफे पर फातिमा बेगम के साथ आ बैठी। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा। वो बदिक्कत खुद को नॉर्मल कर पाई। वो मुतमईन हो गई तो वो साइमा ताई के बारे में सोचने लगी, जिनका हया मेरी जान कहते मुंह न थकता था, और फुरकान ताया की तो वो बड़ी बेटी थी, मगर उनके दिल में ऐसे ख्यालात थे ये वो गुमान भी नहीं कर सकती थी। और वो फूल, वो भी फ़रख या रज़ा ने भेजे थे। मगर जब पहली बार उसको फूल आए थे तो फ़रख शहर से बाहर था, और रज़ा तो इस्लामाबाद में ही था। मगर इनमें से किसी को उसके सभांजी सिलेक्शन का पता नहीं था। शायद जब वो ज़ारा को फ़ोन पर बता रही थी तब खिड़की के बाहर कुछ खड़का था। वो जो कोई भी था, उसने खिड़की के बाहर से सारी बात सुन ली थी, और उसने फूलों के साथ खत लिखकर रख दिया होगा। मगर कुरियर पर तो एक दिन पहले की मोहर लगी हुई थी। शायद उसने कोई जाली मोहर इस्तेमाल की हो। मगर इस तरह के झमेलों में फ़रख और रज़ा जैसे जॉब वाले मसरूफ़ बंदे क्यों पड़ेंगे भला। उसका दिल कह रहा था कि फूल भेजने वाला कोई और ही है। खैर दफ़ा करो, जो भी हो। उन दोनों का दिमाग तो मैं अभी ठीक करती हूँ। वो तेज़ी से उठकर लड़के लड़कियों के ग्रुप की तरफ चली आई। इरम, उसने अपने मखसूस अंदाज में सीने पर हाथ बांधे हुए इरम को मुखातिब किया तो सब रुक कर उसको देखने लगी। क्या तुम लोगों ने सबीन फुप्पो को शादी का कार्ड भेजा था तुर्की? किन अखियों से उसने फ़रख और रज़ा के चेहरों को मान पड़ता देखा। सलमान चचा को कार्ड दिया था उन्होंने भिजवा दिया होगा, और सबीन फुप्पू को अब्बू ने फ़ोन करके कह दिया था। क्या सबीन फुप्पू आएंगी? आना तो चाहिए, करीबी रिश्ता है तुमसे ना सही हमसे तो है। उसने करीबी रिश्ते पर जोर डालते हुए फ़रख और रज़ा पर एक नज़र डाली। उनके चेहरे फीके पड़े थे और दोनों ही सोच में गुम थे। फिर खाने के वक्त साइमा ताई ने सबसे पहले उसको बुलाया। हया मेरी जान, तुम तो समझदार हो। ये इरम तो बस तुमने टेबल पर ख्याल रखना है। जैसे ही कोई डिश खाली हो या आधी हो जाए तो फ़ौरन ज़फ़र को आवाज़ दे देना, ठीक? श्योर ताई, मैं ख्याल रखूँगी। वो बदिक्कत मुस्कुराती हुई सर्व करने लगी। चंद मिनट बाद सब खड़े अपनी अपनी प्लेटों में खाना निकाल रहे थे। ताया जान, आपने सलाद नहीं लिया? वो रशियन सलाद का प्याला हाथ में लिए अब्बू और ताया फुरकान की तरफ आई, जो अपने धुन में बातें कर रहे थे। उसके पुकारने पर चौंके। थैंक यू बेटा। ताया फुरकान ने मुस्कुराते हुए सलाद अपनी प्लेट में निकाला। वो सलवार कुर्ते में मलबूस थे और शाल ली थी, बारोब चेहरे पर मूछे। सलमान साहब उनके बरफ क्लीन शेव डिनर सूट में बहुत स्मार्ट लग रहे थे। दोनों की सोचें उनके हुलियों जैसी थी। अब्बा आप भी लेना। सलमान, तुमने सबीन को कार्ड
पोस्ट कर दिया था। ताया को अचानक शायद उसकी शक्ल देखकर याद आया था। सलमान साहब का चमचे से सलाद भरता हाथ ज़रा सुस्त पड़ा और चेहरे पर कड़वाहट फैल गई। बहुत आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चमचा प्लेट में पलटा। कर दिया था, कर दिया था। उनके लहजे में कांट थी जो हया के लिए नहीं थी। अब्बा, सबीन को शादी पर आएंगी? वो पूछे बिना ना रह सकी। कल मेहंदी है, आना होता तो आज आ चुकी होती। 30 सालों में जो औरत सिर्फ कुछ दफ़ा मिलने आई हो, वो अब भी ना आए तो बेहतर है। फुरकान ताया भी दंग रह गए। सलमान, क्या हुआ है? थैंक यू बेटा, सलमान साहब ने हया को कहा। इसका मतलब था कि अब तुम यहाँ से जाओ, और वो इशारा समझकर सर झुकाते वहाँ से आ गई। बहुत आहिस्ता से सलाद का प्याला मेज़ पर रखा और अपनी आधी भरी प्लेट उठा ली, मगर अब कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा था। ये अब्बा को क्या हुआ था? वो फूफू के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? फिर उससे रहा नहीं गया। वो अपनी प्लेट उठाकर सुकून के साथ खड़ी हो गई, जिसकी दूसरी तरफ अब्बा और ताया खड़े थे, बज़ाहिर अपनी प्लेट पर नज़र झुकाते। कान उन दोनों की बातों की तरफ थे। हया के लिए लगारी ने अपने बेटे का प्रपोजल दिया है। सलमान साहब ने अपने दोस्त का नाम लिया तो हया के हाथ में पकड़ी प्लेट लरज़ी। चलिए जी, पहला एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जानती हूँ पहली बार है, बहुत सारी गलतियाँ हुई, बहुत जगह पे रुकी हूँ। प्लीज़ 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 पहली गलती समझ के इग्नोर कर दीजिएगा। इसके अगले एपिसोड इसके ऊपर लाइक और कमेंट्स के हिसाब से प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़। फिर अगली बार भी हम मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा आपकी दोस्त को। एचके की तरफ से अल्लाह हाफिज़।